हेलो एवरीवन। हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे साइंस पेपर 2 के लिए। तो अ, इसके आगे के पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 का इंग्लिश सेक्शन में हम प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट के इंग्लिश सेक्शन में थे। तो इंग्लिश सेक्शन का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे, 61 से 69 तक, जहाँ पर एक प्रोज का आपको पैराग्राफ दिया गया है। इसको रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स पैराग्राफ से ढूंढ करके लिखने हैं। तो पैराग्राफ इस तरीके से है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन केरला देर वॉज अ किंग हु लव्ड म्यूजिक। ही यूज्ड टू इनवाइट eminent musicians to his palace and arrange concert for every confirmed music lover who flocked to the palace in large numbers. He was worried because he was not able to differentiate between the genuine music lovers and others. One day, he arranged a grand program and invited eminent musicians to it, but he laid down one stipulation before the concert. He announced, I find that many music lovers appreciate music by antiques, gesticulations, contortions of the face, shaking their heads and beating with their hands or feet. These distract others. So, if anyone indulges in such antics, his head would be cut off. A great musician began to sing. It was really a feast for the ears, but none dared to move their heads or feet. There was pin drop silence among the audience, but one of them, a great expert himself, was charmed by the melodious music of the master musician that he could not contain himself. He began to shake his head and beat on his thigh, beat on his thighs in appreciation of the music. Someone sitting near him pointed out the impropriety and the threat of his life, but he exclaimed loudly, I do not care if I lose my head. If I lose my head, and continued his antics. The king heard what he said. Instead of getting angry, he proclaimed, here is a true lover of music. For the sake of music, he is prepared to sacrifice his life. After the end of the concert, I am going to present him a beautiful golden chain of honor. बहुत ही प्यारी सी स्टोरी दी गई है इस पैराग्राफ में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द किंग डिसैलो। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, मेंटेनेंस ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस, फ्लॉकिंग ऑफ द पैलेस इन लार्ज नंबर्स, announcing award to the musicians, and fourth is doing acts that distract others. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डूइंग acts that distract others. क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, why did the king announces the reward of golden chain. ऑप्शन है हमारे पास में, पहला टू डेमोन्स्ट्रेट हिज लाइकिंग ऑफ द पीपल, सेकेंड एट द मोमेंट ओनली गोल्डन चेन वॉज अवेलेबल, ऑप्शन नंबर 3 है इन ऑर्डर टू कीप हिज ओन ऑनर एंड प्रेस्टीज, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस. द आंसर विल बी नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 63 इज, what made the person move his head despite warning. ऑप्शन नंबर 1 है his lack of understanding, second is his carelessness, third is his complete engrossment, fourth is his usual habit. आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 his complete engrossment. क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
in the context of the passage. Option number 1, the antics of the person fetched him the award. Option number 2, the person would have stopped if someone warned him. Option number 3, the king lost his temper and exclaimed loudly. Option number 4, the golden chain was not a beautiful one. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Option number 1, the antics of the person fetched him the award. Question number 65 is, the king announced the harsh punishment in order to. Option number 1, identify the real music lover. Second is, reduce the number of people flocking to the palace. Option number 3, cut off the head of one of the audience. Option number 4, avoid any interference from the outsiders. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आइडेंटिफाई द रियल म्यूजिक लवर. Question number 66 is, which of the following is not true in the context of the passage? Option number 1, the king cut the head off for violation of his orders. Option number 2, despite warning, one person did not abstain from movements. Option number 3, the winner of the golden chain was a true music lover. Option number 4, the program eminent musicians were invited. Then the answer will be option number 4, the king cut the head off for the violence of his orders. क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं. According to the passage, what was the quality of the king? Option is, he was fair and just in the court. Second, he was an excellent musician. Third, he hated antiques. Fourth, he wanted others to appreciate music. Answer will be option number 4. Answer number 4, he wanted others to appreciate music. Question number 68. After identifying true music lover, the king, option, immediately presented him the golden chain. Second, chained the person in honor. Third, started making antiques himself. Fourth, announced award in the form of beautiful girl. Answer is option number 4, announced award in the form of a beautiful girl. Question number 69. Despite violation of stipulation, the king rewarded the person because. Option is, the king loved him most. Option number 2, according to the king, he was the only person who dared to disobey him. Option number 3, the king found that the person had overlooked the warning. Option number 4, none of these. Now the answer will be option number 4, none of these. नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70 से 72 तक हमारे पास में एक पोयम दिया गया है. पोइट्री का एक सेक्शन है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर हमें पोइट्री से ढूंढ करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 70 से 72 तक आंसर यहाँ पे मिलेंगे. तो पोइट्री है यहाँ पर. Books, a dull and endless strife. Come here, the woodland linnet. How sweet his music on my life. There's more of wisdom in it. And hark, how bleat the thostel signs. He too is no mean preacher. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Enough of science and of art. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. तो ये हमारा पोइट्री का सेक्शन था. इसमें से कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डज नेचर गिव? ऑप्शंस है हमारे पास में. फर्स्ट, नेचर गिव्स अ डल एंड एंडलेस strife. Option 2, nature gives a true education into the light of things. Option 3, nature preaches us the complexity of things. Fourth, nature develops negative aspects of life. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2,
नेचर गिव्स अ ट्रू एजुकेशन इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 71 पूछता है हमसे, व्हाट एक्सप्लेनेशन विल यू अटैच टू अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट हार्ट वॉचेस आर एक्शंस, सेकंड हार्ट वॉचेस द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन एक्सेप्ट्स द ट्रूथ। ऑप्शन थ्री हार्ट completes receives and then watches। ऑप्शन फोर हार्ट इज अ गुड रिसीवर बट अ बैड वॉचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, हार्ट वॉचेस द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन एक्सेप्ट्स द ट्रूथ। लास्ट क्वेश्चन है 72 जो इस पोइट्री सेक्शन से जिसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग ब्लिथ बिलोंग टू। BLITHE ये वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास में एडजेक्टिव, सेकंड नाउन, थर्ड डिटर्मिनर्स एंड फोर्थ इज एडवर्ब। आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर वन एडजेक्टिव। तो यहाँ तक हमारा ये जो पोइट्री सेक्शन था इससे आंसर मिल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। ये इंग्लिश पेडागॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। इंग्लिश पेडागॉजी का सेक्शन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वीडियो देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सेकेंड फैक्चुअल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेस्ड purely on the reading text and fourth is personal response questions। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन 74 क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नीड टू brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process which reflects option 1 writing skill, option 2 listening skill, option 3 speaking skill and option 4 reading skill। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, 75 में आते हैं, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, सेकंड टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, थर्ड asking the children to read the text aloud, fourth helping learners speak words softly while reading। Answer will be option number 1 learners reading silently and asking comprehension questions। Question number 6, if you give the due respect to your own students then you have in your mind that option number 1 you are exhibiting high standards of ethical relations, option number 2 you are preserving your own sovereignty, option number 3 you have matured attitude towards students, option number 4 you feel that the students are motivated to follow this practice। Answer will be option number 4 you feel that the students are motivated to follow this practice। Question number 77 is, who said language is one of the most important and characteristic forms of human behavior? Option number 1 Bloomfield, option number 2 Socrates, option number 3 Aristotle and option number 4 Gilson। Answer will be option number 4 Gilson। Question number 78, the theory that assumes that speech originated from sound imitation is known as option number 1 sing song theory, option number 2 divine gift theory, option number 3 onomatopoetic theory and option number 4 contact theory। Answer will be option number 3 onomatopoetic theory। Now question number 79, which of the following steps are conducted
by the pupil teacher while teaching a poetry lesson? Option number 1, model reading. Option number 2, second reading. Option number 3, gist of the poem. And option number 4, all of these. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, all of these. Question number 80. Which technique is used in the teaching of poetry? Option number 1, comprehension. Option number 2, parallel question. Option number 3, evaluation. Option number 4, all of these. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैरेलल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 81 है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री सफ़र्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस. फर्स्ट, लैक ऑफ गुड टीचर्स. सेकेंड, फॉरेन लैंग्वेज. थर्ड, मेटाफर्स एंड सिमिलीज. ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड मदर टंग इज द बेसिक ऑफ ऑल वर्क? ऑप्शन नंबर 1, गरी. ऑप्शन नंबर 2, रिबर्न. ऑप्शन नंबर 3, भाटिया. ऑप्शन नंबर 4, मैनन एंड पटेल. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाटिया. 83 क्वेश्चन है, हिंडरेंस in the teaching of English is caused by the use of mother tongue due to, first, idiomatic interference, second, pronunciation interference, third, vocabulary interference and fourth, all of these. तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, all of these. Question number 84. Vocabulary can be taught by using the following techniques. First, uses. Second, directs. Third, synonyms. And fourth, all of these. Answer will be option number 4, fourth, all of these. Now question number 85. 85 question कहता है, Halliday identified 7 functions that language has for children in their early years. Which one of the following is not one of them? First is instrumental, second regulatory, third interactional, fourth reflective. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिफ्लेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 86. Blank function is when language is used to gain knowledge about the environment. For example, what is the tractor doing? Which one of the following is the above function identified by Halliday? Option number 1, instrumental. Option number 2, regulatory. Option number 3, heuristic. Option number 4, रिप्रेजेंटेशनल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूरिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 87. मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन आर, फर्स्ट, इमिटेशन मेथड. सेकेंड, सब्सिडियरी मेथड. थर्ड, फोनेटिक मेथड. फोर्थ, ऑल ऑफ दीज. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. Which of the following is not a type of words? Option number 1, functional word. Option number 2, situation word. Option number 3, content word. Option number 4, substitute word. Answer will be option number 2, situation word. Question number 89. Which of the following is the first step of teaching pronunciation by imitation method? Option number 1, drill. Option number 2, imitation. Option number 3, perception. Option number 4, feedback. Answer will be option number 3, perception. Question number 90. Which of the following should be kept in mind while formulating homework policies? Formulation. Option number 1, ineffective and mathematical drills should be used often. Option number 2, content of homework should not be a great variety. Option number 3, exercise book available in the market should be done first. Option number 4, teachers should make good use of the homework as a tool for evaluation and feedback. Answer will be option number 4, teachers should make good use of the homework as a tool for evaluation and feedback. भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने. भाग 4 में आते हैं. भाग 4 जो है हमारा, ये गणित से रिलेटेड है. तो गणित में पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन लास्ट में दिया हुआ है. तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन
सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा वो बताएंगे और इसका सॉल्यूशन लास्ट में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 पूछता है, एक विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता में 24 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो उस प्रतियोगिता में कितने बच्चे खेले गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 276। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास में, कक्षा 8 में गणित शिक्षण के दौरान एक शिक्षक गणित की संश्लेषण विधि व विश्लेषण विधि के बारे में इस प्रकार बताते हैं। सूखी घास के ढेर में से एक सुई या तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, जबकि विश्लेषण विधि में स्वयं सुई या तिनका घास के ढेर से बाहर निकलना चाहता है। उपरोक्त कथन किसका है? पहला है यंग, दूसरा ए शुलेजे, तीसरा यूक्लिड और चौथा है पाइथागोरस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यंग। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दिए गए चित्र में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, तो बीडी तथा सीडी की लंबाई क्या होगी? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 14/5 और 21/5। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास में है, नितिन एक प्राथमिक विद्यालय में है, वह गणित के अध्यापक हैं। वह प्रोजेक्ट के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास में, पहला आर्यभट्ट का, दूसरा बेलार्ड का, तीसरा स्टीवेसन का और चौथा है पार्कर का। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेलार्ड का। फिर हमारे पास में x + 2y + 4z का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8xz। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, यदि 3⁻0 + 3⁻−1 डिवाइडेड बाय 3⁻−1 - 3⁻0 = x हो, तो x किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -2। क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा 7 में ज्यामिति पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर एक वृत्त इस प्रकार खींचते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है। तो उपरोक्त के आधार पर ए बी एक जीवा है, ओ सी उस जीवा पर लंब है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पहला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप जीवा की लंबाई के आधे के बराबर होती है। दूसरा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तीसरा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। चौथा, वृत्त की जीवा सदैव त्रिज्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 98, 5x² = x² + 1, तो x किसके बराबर होगा? 1/6, 1/4, 1/3 और 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/2। 99 क्वेश्चन है हमारे पास में, कौशल गणित के शिक्षक हैं। क्षेत्रमिति अध्याय को पढ़ाते हुए एक प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन इस तरह से है, पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। इसके चारों कोनों से 2 मीटर भुजा का वर्ग काट लिया गया है। शेष आकृति से एक खुला डिब्बा बनाया जाता है, तो उस डिब्बे की माप क्या होगी? यदि एक छात्रा मोनिका ने सही उत्तर दिया तो उसका उत्तर क्या होगा? तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 मीटर गुना 2 मीटर गुना 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, बारिश के दिनों में एक स्थान पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि उस स्थान की माप 1 वर्ग मीटर हो, तो उस स्थान पर वर्षा के जल का आयतन कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 20,000 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 101, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ।
गांधी जयंती के अवसर पर एक अध्यापक ने यह जानकारी दी कि जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ उस दिन रविवार था। यदि उनका जन्म 27 अक्टूबर को होता तो कौन सा दिन होता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कक्षा 6 के एक छात्र ने एक प्रश्न को इस प्रकार हल किया 3 to the power 4 into 3 to the power 2 is equal to 6 to the power 6 and 4 cube into 3 square is equal to 7 to the power 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है छात्र द्वारा हल किए गए प्रश्न से ज्ञात होता है कि छात्र को समझ नहीं आता है। पहला, गुणन संक्रिया की अवधारणा समझ नहीं आई। दूसरा, घातांक संबंधी नियमों की समझ नहीं है। तीसरा, छात्र को इस प्रकार के प्रश्न हल करने की समझ नहीं है। तीसरा, इसमें से कोई नहीं। ये मैथ्स पैडागॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घातांक संबंधी नियमों की समझ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है एक अध्यापक ने रेखा गणित पढ़ाते समय कुछ रेखा गणितीय आकृतियां बोर्ड पर बनाई तथा छात्रों से कहा कि इनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करो। इसमें शिक्षक का क्या उद्देश्य है? एक आकृति को पर्टिकुलर आकृति को अलग करना चाहता है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास में ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा है भावात्मक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवबोधात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उमा एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की अध्यापिका हैं। वह कक्षा 8 में लघुत्तम समापवर्ती संबंधी प्रश्नों को हल करने का तरीका इस प्रकार बता रही हैं 6 is equal to 2 into 3, 8 is equal to 2 into 2 into 2 एंड 12 is equal to 2 into 2 into 3। तो अभिष्ट लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 is equal to 24। उनके द्वारा हल किए गए प्रश्न में किस विधि का अनुपालन हो रहा है? पहला है भाग विधि, दूसरा योग विधि, तीसरा गुणनखंड विधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला जो प्रोसेस होता है ये गुणनखंड विधि होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 105 है 12 आदमी 1 किलोमीटर लंबी सड़क 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में बना देते हैं। इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से 3 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है 563 इंटू 344 इंटू 231 इंटू 378 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 6। क्वेश्चन नंबर 107 है कक्षा 6 में 27 विद्यार्थी हैं। एक छात्र के बीमार हो जाने के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है तो छात्रों की औसत आयु में 1/4 वर्ष की कमी आ जाती है। यदि 27 छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है तो मरने वाले छात्र की आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 108 है 1.49 इंटू 1.49 माइनस 0.51 इंटू 0.51 डिवाइडेड बाई 1.49 माइनस 0.51 का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं 109 कहता है क्वेश्चन नंबर 109 ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 93.1/3। क्वेश्चन नंबर 110 में आते हैं 110 कहता है कि यदि a/b बराबर 4/3 हो तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/7। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं 111 क्वेश्चन कहता है मोहन एक गणित के अध्यापक हैं। शिक्षक महोदय कक्षा 7 में इस प्रकार बताते हैं कि गणित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। गणित एक अलग विषय है। उपरोक्त कथन में गणित एक अलग विषय के रूप में स्वीकार करने वाले और विश्लेषण करने वाले निम्न में से कौन हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में टॉलमी, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा KG
सैयदेन, और चौथा है रामानुजम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, यदि आपको नीचे के चित्र की भांति एक वृत्त दिया जाता है तो आप एक अध्यापक हैं तो किस विधि द्वारा वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे? पहला है निगमन विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि और चौथा है इकाई विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 8.27 है तो इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2:3। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि राधा कक्षा 6 की छात्रा है। वह बाजार से 5 अभ्यास पुस्तिका ₹6.50 की दर से तथा 3 पेन ₹1.75 की दर से खरीदती है। यदि उसके पास ₹56 है तो उसके पास धन शेष होगा। कितना धन शेष होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ₹18.25। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, राम सेवक ने बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया है। कुछ समय बाद उसे पता चला कि इस धन को चुकाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। यदि उसने 2 वर्ष में धन चुकता किया तो उसे ₹31 ज़्यादा देने पड़े। उसने कितना धन उधार लिया था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ₹3100। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, राम को ज्ञात हुआ कि दूध के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। वह अपना खर्च पूर्ववत रखता है तो उसे दूध के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25%। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है, नितिन और राकेश ने एक कार किराए पर ली। उस कार का प्रतिदिन का किराया ₹740 है। यदि उन दोनों ने कार को 3:2 में उपयोग में लिया तो राकेश को 30 दिन में कितना किराया देना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ₹8,880। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, अनु गणित की अध्यापिका है। वह कक्षा 8 में त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों को इस प्रकार लिखकर समझा रही हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √S S - A S - B S - C, जहाँ 2S = a + b + c और S = a + b + c/2। अनु द्वारा बताए गए सूत्र नया सूत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला आर्यभट्ट का सूत्र, दूसरा ब्रह्मगुप्त का सूत्र, तीसरा पाइथागोरस का सूत्र और चौथा है हीरो का सूत्र। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरो का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, x⁴ डिवाइडेड बाय 36 = 6x बाय √729 हो तो x किसके बराबर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 के बराबर में। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है? पहला संख्याओं का हिसाब लगाना, दूसरा जोड़ व घटाव करना, तीसरा समीकरणों को हल करना, चौथा बैंकों की कार्यप्रणाली में की जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। अब आते हैं हम लोग लास्ट में विज्ञान के पार्ट में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विज्ञान में, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शन है हमारे पास में, पहला संयोजन अभिक्रिया का, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का और चौथा है विघटन अभिक्रिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का। क्वेश्चन 122 धातु ऑक्साइड पहला प्रकृति में अम्लीय होते हैं, दूसरा प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, तीसरा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, चौथा प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है?
पहला विटामिन, दूसरा स्टार्च, तीसरा वसा और चौथा है ग्लूकोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च। क्वेश्चन 124 कहता है घरों में चूना पोतने का कार्य क्षारक और पानी के मिश्रण के द्वारा करते हैं, वह क्षारक है। पहला कैल्शियम डाइऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 125 कहता है भूकंप आने का प्रमुख कारण है क्या क्या कारण है? पहला ज्वालामुखी का फटना, दूसरा नाभिकीय विस्फोट के कारण, तीसरा पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हार्मोन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में बताना है, क्या करता है ये? पहला रक्त शर्करा के स्तर नियंत्रण में सहायक होता है, दूसरा जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर में समंजन में शरीर की सहायता करता है, तीसरा शरीर के विद्युत उपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है और चौथा है लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है? लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। क्वेश्चन 127 कहता है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं? अधिक नमक और चीनी, पहला ऑप्शन है हमारे पास में सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, दूसरा के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, तीसरा के कारण नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है, चौथा है नमक और चीनी के कारण खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नमक और चीनी से क्या होता है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है रसोई गैस में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में द्रव अवस्था में भरी होती है क्योंकि पहला यह संभागीय मिश्रण है, दूसरा यह कई गैसों का द्रव्य मिश्रण है, तीसरा इसमें गैस बहुत अधिक दाब पर भरी होती है, चौथा सिलेंडर के अंदर कम ताप होने के कारण गैस द्रव अवस्था में रहती है। तो एलपीजी गैस जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं रसोई गैस सिलेंडर, उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, क्यों रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें गैस बहुत अधिक दाब पर भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि विद्युत लेपन में जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास में एनोड के रूप में, दूसरा कैथोड के रूप में, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनोड के रूप में। क्वेश्चन 130 कहता है जब बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है तो बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल की सतह के बाहर रहता है? 1/12 भाग, 11/12 भाग, 5/6 भाग, 1/6 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1/12 भाग। क्वेश्चन 131 कहता है कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं सामान्यतया ये पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में ध्रुवीय क्षेत्र में, दूसरा मरुस्थल क्षेत्र में, तीसरा महासागर क्षेत्र में, चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन 132 कहता है कि हीरा, ग्रेफाइट, पत्थर और कोयला आदि सभी कार्बन के ही विभिन्न रूप हैं, फिर भी इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रसायन विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? पहला अपरूपता, दूसरा समस्थानिक, तीसरा समभारिक, चौथा समरूपता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपरूपता। क्वेश्चन 132 कहता है रॉकेट किस नियम पर आधारित है? पहला ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, दूसरा ऊष्मा संरक्षण के नियम पर, तीसरा संवेग संरक्षण के नियम पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संवेग संरक्षण के नियम पर। क्वेश्चन 134 कहता है
पानी के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान की तरह कार्य करता है। पहला अवतल दर्पण की तरह, दूसरा उत्तल दर्पण की तरह, तीसरा अवतल लेंस की तरह, चौथा है समतल उत्तल लेंस की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समतल उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन 135 कहता है पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। पहला केंद्रक की अनुपस्थिति, दूसरा कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, तीसरा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, चौथा है हरित लवक की अनुपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रक की अनुपस्थिति। क्वेश्चन 136 कहता है विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पहला विद्युत का कुचालक है, दूसरा विद्युत का सुचालक है, तीसरा थर्मोप्लास्टिक है, चौथा ऊष्मा का सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन 137 कहता है यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता है तो उस छात्र में कौन से विटामिन की कमी नहीं होगी। पहला है विटामिन B12 प्लस जिंक, दूसरा है कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, तीसरा है प्रोटीन प्लस कोबाल्ट और चौथा है आयरन प्लस विटामिन C। तो नियमित रूप से गाजर खाने से क्या होता है, बॉडी में आयरन और विटामिन C की कमी नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयरन और विटामिन C। क्वेश्चन 138 कहता है सस्ती धातुओं से बने आभूषणों पर सोने तथा चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे पहला एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, दूसरा कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, तीसरा विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं और चौथा है केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जिस वस्तु पर लेपन हम करते हैं उसको हम लोग कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 139 कहता है अधिकांश ज्वालामुखी स्थित है। तो अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, पहला दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा हिमालय की पर्वतमाला में, तीसरा हिंद महासागर के चारों ओर, चौथा है प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर के चारों ओर। क्वेश्चन 140 है एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ जल लेते हैं और उसमें शाक के तने को आधार से काट कर रखते हैं। शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, पहला लाल स्याही की भांति जल में विलीन जल के रूप के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं, दूसरा तने में जल ऊपर चढ़ता है, तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकल्प 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 141 पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, पहला अपरदन को रोकने के लिए, दूसरा जल की कमी के कारण, तीसरा मृदा संरक्षण के लिए, चौथा है ऑप्शन 1 और 3 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन 142 विज्ञान शिक्षा सामाजिक युक्तियों के विकास में सहायता करती है। इस कथन से आप सहमत हैं, दूसरा आंशिक रूप से सहमत है, तीसरा पूर्णतः सहमत है, चौथा सहमत है भी और नहीं भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्णतः सहमत है। क्वेश्चन 143 कहता है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग की निम्न में से क्या एक समस्या नहीं है। पहला, बच्चों में इनके प्रयोग से आत्मविश्वास पैदा होता है, दूसरा, बच्चों में इनके प्रयोग से उचित दृष्टिकोण पैदा होता है, तीसरा, बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव होता है, चौथा, बच्चों में इनके प्रयोग से स्व शिक्षा का दृष्टिकोण पैदा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा होता है। क्वेश्चन 144 है अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है कि, अन्वेषण प्रणाली का दोष है, पहला गृह कार्य बहुत दिया जाता है, दूसरा व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है, तीसरा छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती, चौथा है अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है।
क्वेश्चन 145 कहता है विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल नहीं है? पहला वैज्ञानिक विधि, दूसरा खोज विधि, तीसरा क्रियाकलाप विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 146 विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। पहला, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस समस्या के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। दूसरा, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। तीसरा, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। चौथा, जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। क्वेश्चन 147 निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य के पोषण विषय पर केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। दूसरा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। तीसरा, भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। चौथा है विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। क्वेश्चन 148 है अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। पहला, अनुदेशात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। दूसरा, छात्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना। तीसरा, शिक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में जारी रहना। चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 149 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला, अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। दूसरा, शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तीसरा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिनमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। चौथा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन कहता है विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से तात्पर्य है। पहला, बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना। दूसरा, बच्चों द्वारा किया गया गृह कार्य। तीसरा, स्कूल की छुट्टी के बाद की जाने वाली कार्यवाही। चौथा है अध्यापक द्वारा सभी बच्चों को दिया जाने वाला दंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना। थैंक यू।